In the last class, we talked about circular flow of income. In that connection, we observed that we have three methods of calculating national income or domestic income. First, at the stage of production. Second one, at the stage of disposition, that is expenditure. And third is distribution of income. Before that, before measuring the national income or domestic income, we should clear some concepts for conversion of different aggregates and different aggregates. We have first of all NNPFC. This is abbreviation NNPFC, that is Net National Product at Factor Cost. NNPFC is read as Net National Product at Factor Cost, which is known as national income. Second one is NDPFC, Net Domestic Product at Factor Cost, which is known as domestic income. It means if we have to find out or calculate the value of national income, we will calculate NNPFC. If we have to measure domestic income, then NDPFC. We have four related aggregates of value added, four related aggregates of domestic product, and four related aggregates of national product. First, GVAMP, explanation of the terms. GVAMP, this is gross value added at market price. Second is gross value added at factor cost, GVAFC. NVAMP, net value added at market price. NVAFC, net value added at factor cost. Likewise, domestic product, GDPMP, first is GDPMP, gross domestic product at market price. Similarly, GDPFC, gross domestic product at factor cost. NDPMP, net domestic product at market price. And NDPFC, net domestic product at factor cost. Now, aggregates related to national product. The first is GNPMP, gross. G stands for gross, N stands for national, P product, MP market price. It is read as GN, gross national product at market price. Second, GNPFC, gross national product at factor cost. And third one is NNPMP, net domestic national product at market price. And NNPFC, net national product at factor cost. In the initial, we talked about national income is termed as NNPFC, and domestic income it is NDPFC. And in calculation, we have to calculate different aggregates. It needs the way of conversion. First key concept for conversion of aggregates, we found first letter G, gross, gross, GVAMP, GVAFC, GDPMP, GDPFC, GNPFC, NNPFC, and so on. GVAMP
and NVAMP, the difference is depreciation. One term is gross, second one is net. The difference between gross and net is depreciation, or it is known as consumption of fixed capital. Again, the difference between the concept of gross and net is depreciation. This depreciation is also known as consumption of fixed capital. Here, GDP gross minus depreciation net, net plus depreciation gross. If we have to convert the gross concept into net, we have to deduct depreciation from gross, and if we have to calculate gross from net, then we have to add depreciation. Gross is the bigger concept. For simplicity, gross is the bigger concept, net is the smaller concept. For example, we have a packet of tea. The weight of tea including the packet is gross. The weight of tea excluding packet is net. The difference between these two is the weight of the carton or packed material. That is depreciation. इससे भी अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि एक कोकोनट है, कोकोनट का फुल कोकोनट इज ग्रॉस, और उसमें हमें चाहिए मटेरियल, वह हो गया नेट। तो कौन सा बड़ा है? तो कोकोनट का साइज, फुल कोकोनट का साइज वो दैट इज बिगर, और उसके अंदर जो हमारा जो है कि मटेरियल जो गरी ले रहे हैं वो दैट इज नेट। तो ग्रॉस इज द बिगर कंसेप्ट एंड नेट इज द स्मॉलर कंसेप्ट। If we have to find out the smaller, we have to deduct. If we have to find gross, we have to add. So what is addition? What is subtraction? That is depreciation, which is the difference between gross and net. Second, national and domestic. सबसे पहले आप जान लें the difference between national and domestic is net factor income from abroad. It is written as NFIA, net factor income from abroad. This net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad and factor income to abroad. Net factor income from abroad is the difference between net and national and domestic. Domestic is theoretically narrow concept. National income is bigger concept. If we have to go from domestic to national, we have to add NFIA. If we have to calculate domestic from national, to convert the national concept into domestic concept, then NFIA is to be deducted. इसलिए यहाँ हमने दिखाया है आपको, ये नेशनल कंसेप्ट है, ये डोमेस्टिक में जाना है, तो ये एरो आपको दिखा रहा है कि नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। आप जान चुके हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ है कि अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो NFIA को ऐड करेंगे या उसको लेस करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेशनल कंसेप्ट इज द बिगर कंसेप्ट एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट इज स्मॉलर कंसेप्ट। जब भी बिगर से स्मॉलर की ओर जाएंगे तो हमें जो है कि उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने का मतलब है कि हमें माइनस का साइन दे देना है, किसमें? NFIA में, जो दोनों के बीच का जो है कि डिफरेंस है। इसलिए यहाँ नेशनल से डोमेस्टिक में जो एरो जा रहा है तो वहां हमने NFIA को लिया और यहाँ माइनस साइन दे दिया। अब अगर डोमेस्टिक से हमें इधर आना है तो इसको छोटा से बड़ा करना है, और छोटा से बड़ा करने के लिए हमें ऐड करना होगा। ऐड किसको करेंगे? जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? NFIA।
ओके। थर्ड, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA. NFIA, net factor income from abroad, is the difference between national and domestic concept. A third important concept, this is MP and FC. MP is read as, or MP stands for market price. FC stands for factor cost. Market price means when we go to sell our product in the market, different types of indirect taxes are imposed. जब भी हम कोई सामान जो है कि मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो उस पर कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होते हैं, और इस इनडायरेक्ट टैक्स के कारण जो है कि मार्केट में उस चीज का वैल्यू बढ़ जाता है। सपोज हमने एक सामान बनाया जिसमें जो है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इन चारों के पेमेंट के बाद उसका टोटल वैल्यू 100 का आया। इसका मतलब 100 रुपये का सामान हमने तैयार किया। अब इस पर अगर मार्केट में हम बेचने के लिए जाते हैं तो 20% हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। तो मार्केट में उसका प्राइस कितना हो जाएगा? तो 120 रुपये। गवर्नमेंट फील कर रही है कि दिस 120 इज अनफ फॉर द कंज्यूमर, और गवर्नमेंट चाहती है कि उसके प्राइस को कम कर दें, तो उस पर उन्होंने 5 रुपये की सब्सिडी दी। दैट इज सब्सिडी इज द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर और फर्म और सो ऑन। तो यहां हमने क्या किया? तो 20 रुपया बढ़ा और 5 रुपये सब्सिडी के रूप में घटा, तो वो मार्केट में कितने में सेल होगा? 115 रुपये में। दिस 15 इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। Net effect of indirect tax. Net effect of indirect tax is indirect tax minus subsidies. तो indirect tax 20 रुपये थे और सब्सिडी 5 रुपये थी, तो net indirect tax is 15. अगर मार्केट में 115 में जा रहा है तो मार्केट प्राइस इज 115, net indirect tax is 15, factor cost is 100. और अगर जो है कि फैक्टर कॉस्ट से हमको मार्केट प्राइस जानना है तो हम इसमें जो है उसको ऐड कर लेंगे। 100 रुपये का फैक्टर कॉस्ट था और वहीं जो है कि 15 रुपये NIT उसमें जो है कि इंक्लूड हुआ, तो मार्केट प्राइस इज 115। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब दोनों का डिफरेंस है, एक में ऐड के लिए ऐड करना होगा, दूसरे के लिए लेस करना होगा। तो किसके लिए एडिशन, किसके लिए सब्ट्रैक्शन? तो बिगर मार्केट प्राइस इज जनरली बिगर कंसेप्ट एंड फैक्टर कॉस्ट इज जनरली स्मॉलर कंसेप्ट। इसलिए बड़ा से छोटा करने के लिए माइनस, तो किसको माइनस करेंगे? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जो है कि उसमें माइनस करेंगे। और प्लस किसको करना है? अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो छोटा से बड़ा करने के लिए प्लस, किसको प्लस करेंगे? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट FC प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फोर्थ वन इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। We talked about net indirect. It is difference between the indirect tax and subsidies. दोनों के बीच का अंतर इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब है कि इनडायरेक्ट टैक्स कभी कभी जो है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज सेल टैक्स दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। जो जिस टैक्स को दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है वह जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जांपल सेल टैक्स, अगर हम सामान बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो अगर सामान हमारा जो है कि 20 रुपये का है, मार्केट में उसमें 5 रुपये इनडायरेक्ट सेल टैक्स लगा तो वहां उसकी कीमत 25 हो जाएगी। तो सेल टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। और ये सेल टैक्स जो है कि फाइनली किस पर जाएगा?
तो फाइनल कंज्यूमर को। एक्साइज ड्यूटी है, प्रोडक्शन यूनिट पे जो है कि प्रोडक्शन के लिए टैक्स लगता है, दैट इज एक्साइज टैक्स। वह जो है उसको होलसेलर से वसूल कर लेते हैं, होलसेलर जो है कि रिटेलर से वसूल करता है, और रिटेलर जो है फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है। Hence, this tax can be shifted to others. It's why indirect taxes are those taxes which can be shifted to others. तो इसलिए ये जितने सारे इस तरह के टैक्स अगर कैलकुलेट दिए हुए हैं हमारे, तो सबको हम एक जगह ले लेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नीचे ये भी दिए हुए हैं, वी विल नॉट टेक दिस। अगर यह दिया हुआ नहीं है, देन वी विल गो फॉर सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी एक्सेट्रा, which are indirect tax. Minus subsidies. Subsidies, one type of subsidy is given to the consumer. जैसे कि गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी है, गैस का जो प्रोडक्शन होता है उसकी कीमत जो है कि वहाँ फैक्ट्री में जहाँ तो तैयार हो रहा है, फैक्टर पेमेंट के रूप में जो है कि उनका कॉस्ट आ गया 800 रुपये, और जब मार्केट में आएगा तो उस पर टैक्स लगेंगे, मान लेते हैं 1000 हो गया, 200 रुपये टैक्स हुए। लेकिन सच मोस्ट ऑफ द सिलेंडर्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, और इस कंज्यूमर में हर तरह के कंज्यूमर हैं, इसलिए उनको जो है कि एफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडी दे देती है, उस पर आर्थिक सहायता देती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है। अगर 200 रुपये टैक्स लगे थे तो 200 कीमत बढ़ी थी, और उस पर सब्सिडी जो है कि गवर्नमेंट ने 300 रुपये दे दिया, तो वहां से उसकी कीमत जहां 800 रुपये हुई थी, 800 से 1000 हुई थी, वह घटकर 700 रुपये हो गई। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, एंड सब्सिडी रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। नेट इफेक्ट is to be taken for conversion from market price to factor cost and factor cost to market price. Next one is net factor income from abroad. NFIA stands for net factor income from abroad. इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर्स अदर कंट्रीज में काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काम करते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर काम कर रहे हैं, और उसी तरह जो है कि विदेशी फैक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स बाहर में काम कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम के रूप में हमारे पास आ रहा है, और सिमिलर पेमेंट हम लोग उनको दे रहे हैं, तो वह दूसरे कंट्री में जा रहा है। तो नेट हमारे पास कितना आया, उसी चीज को जानने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो इसलिए जब भी हमको जो है कि डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालना होगा तो वहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट करना होगा। अगर वो दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मान लेते हैं, विदेश से हमारा डोमेस्टिक इनकम जो है कि 1000 रुपीज का हुआ, बाहर से हमें 200 रुपये फैक्टर इनकम के रूप में आ रहे हैं, तो नेशनल इनकम हमारा 1200 का हो जाएगा। लेकिन वी मेक द सिमिलर पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो वहां हमने जो है कि 150 रुपये पे कर दिया, तो नेट हमारा जो है कि 200 आया था, 150 चला गया, 50 इज द नेट, और इसी को नेट को हम जो है इसमें ऐड करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि बाहर से हमें जितना आ रहा है उससे कम हम पेमेंट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से 200 रुपये हमें आए और हमने जो है कि बाहर वाले को 300 का पेमेंट किया, तो वहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विल बी नेगेटिव, और इन दैट केस नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, Can national income, domestic income be greater than national income? And when? If yes, when? क्या डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली कि नेशनल इनकम जो है कि बिगर कंसेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम जो है वो स्मॉलर कंसेप्ट है। जब हम बिगर की तरफ जाएंगे उसको ऐड करेंगे NFIA को, अगर स्मॉलर की तरफ तो लेस करेंगे।
लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेगेटिव हो जाए, इन दैट सिचुएशन डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। इसलिए इसके इंपॉर्टेंट, अब नेट फैक्टर इनकम इसको जो है कि सिंबॉलिकली हम लोग फीफा माइनस फीटा, फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। वन कंसेप्ट वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड का मतलब है कि पहले से प्रोड्यूस्ड गुड्स को हम अपनी एक्टिविटी से उसके वैल्यू को कितना बढ़ाते हैं, दैट इज वैल्यू एडिड। जैसे कि हमने जो है कि एक इस मार्कर को जो है खरीद के लाया, 10 रुपये में हमने खरीदा, और इसे जो है कि हमने फाइनल कंज्यूमर तक इसे पहुंचाया, 11 रुपये में हमने बेच दिया। तो हमने अपनी एक्टिविटी से इस मार्कर की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की, दैट इज वैल्यू एडेड। एंड दिस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट जो 11 रुपये हो गए थे, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो पहले से प्रोड्यूस्ड गुड्स का वैल्यू था, दैट वाज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो 10 रुपया, वैल्यू एडेड इज 1। तो इसलिए वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट consumption. This value added, we have 4 aggregates related to value added. If we deduct the intermediate consumption from value of output, we will have gross value added at market price. Now, we will apply this concept for conversion. For example, we have to convert GDP MP to NNP FC। आपको जो है GDP MP दिया हुआ है, या आपने जो कैलकुलेट किया है वो GDP MP है, और उससे NNP FC आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ठीक से देख लीजिए, जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। निकालना है NNP FC, तो NNP FC इज इक्वल टू, इस FC को P के फुट में लिखेंगे, NNP FC इज इक्वल टू किससे निकालना है, तो यहां आपको GDP MP से निकालना है, GDP MP लिख दिया। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 फर्स्ट लेटर नेट है, ये ग्रॉस है, सेकेंड लेटर नेट है, नेशनल है, डोमेस्टिक है, 2, और ये P है और ये P है, इसको चेंज नहीं करना है, और तीसरा हो गया FC है और MP है। तो आपको 3 चीज को जो है कि चेंज करनी है, या 3 चीज पर कंसंट्रेट करनी है। तो यहां जो है कि आप सबसे पहले ले लीजिए फर्स्ट लेटर G को N में कन्वर्ट कर लिए, G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, N स्टैंड्स फॉर नेट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस आपको मालूम है, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस जो है डेप्रिसिएशन है। तो अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगा कि अब इस डेप्रिसिएशन को ऐड करें या उसको लेस करें। अगर बड़ा से छोटा करना है तो माइनस करेंगे, और छोटा से बड़ा करना है तो प्लस करेंगे। तो यहां आपका दिया हुआ है ग्रॉस और निकालना है नेट। ग्रॉस इज द बिगर कंसेप्ट एंड नेट इज द स्मॉलर कंसेप्ट। तो बड़ा से छोटा करने के लिए आप साइन यहां मार दिए, माइनस, माइनस साइन आपने दे दिया, और दोनों के बीच का डिफरेंस उसको आपने लिख दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन। अब ये ग्रॉस जो है नेट में आपका कन्वर्ट हो गया। सेकेंड है डोमेस्टिक, और उसको करना है नेशनल। डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है, तो छोटा से बड़ा करने के लिए साइन आप पहले मार दीजिए, प्लस हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का NFIA, तो NFIA आपने डाल दिया, दिस इज NFIA। अब जो है प्रोडक्ट नो नीड टू चेंज, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट आपका छोटा है, तो बड़ा से छोटा करने के लिए माइनस। अब किसको माइनस करेंगे, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे। तो NIT इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अब ये हमारा कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये ए हो गया, बी का सॉल्यूशन ये हो गया आपका सॉल्यूशन। NNP-MP टू NDP-FC, तो जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड लेंगे। NDP-FC इज इक्वल टू, जिससे निकालना है NNP-MP से इसको निकालना है। अब इस नेट को, ये भी नेट है और यहां हमको नेट ही चाहिए था। अब यहां देख लीजिए कि फर्स्ट लेटर नेट है और यहां फर्स्ट लेटर नेट ही चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट लेटर को चेंज करने के लिए जो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं रहा, नो नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपके डेटा में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फिर भी हम जो है उस डेप्रिसिएशन को NDP-FC इज इक्वल टू NNP-MP, तो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हो कि ये नेट है और आपको नेट ही चाहिए, इसलिए नेट को चेंज नहीं करना है। तो नेट चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। डेटा में डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा, फिर भी उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कि हमारे नेट में है। तो सेकंड, इसलिए ये खत्म हो गया। सेकंड में जो है कि नेशनल है और ये चाहिए डोमेस्टिक। नेशनल इज द बिगर कंसेप्ट, डोमेस्टिक इज द स्मॉलर कंसेप्ट। पुट द साइन माइनस, क्योंकि बड़ा से छोटा करना है, साइन माइनस कर दिया, और दोनों के बीच का डिफरेंस, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज इज द डिफरेंस, इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब ये सेकेंड मिडल टर्म जो है कि हमारा चेंज हो गया है। अब लास्ट जो है कि मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस इज बिगर, फैक्टर कॉस्ट इज स्मॉलर, तो बिगर टू स्मॉलर माइनस साइन, और दोनों के बीच मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कन्वर्ट हो गया। सी में आपका है NNP-FC टू GDP-MP, GDP-MP इज इक्वल टू, किससे निकालना है? NNP-FC। अब नेट को ग्रॉस करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है, फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो छोटा से बड़ा के लिए प्लस दोनों के बीच का ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन। मिडल टर्म नेशनल है और ये डोमेस्टिक, नेशनल इज बिगर, डोमेस्टिक इज स्मॉलर, माइनस डिफरेंस क्या है? NFIA का कर लिया। यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट स्मॉलर, मार्केट प्राइस बिगर, स्मॉलर टू बिगर, साइन विल बी प्लस, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपके कन्वर्ट हो गए। अब आपको करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग एग्रीगेट्स। पहला आप NDP-FC टू GNP-FC, सेकेंड GDP-MP टू NNP-FC, तीसरा GNP-FC टू GDP-MP, NNP-FC टू NDP-MP। ये आपको कन्वर्ट करके देख लेना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी, ओके।